Hello students. We discussed in last class about the Maratha the Great, Maratha the Raje, Shivaji, and Shivaji. We discussed Shivaji in that class that the father of Shivaji was Shahaji Bhosle and his mother was Jijabai, and his father was under the royal patronage of Bijapur. And most important, we discussed that Shivaji took birth in 1627 and he started to rule in Pune Jagir as a Jagirdar of Pune 1647. And what happened exactly that his tussle was started against Mughals, and he was the only ruler at that time who gave challenge to Mughal empire, and especially against Aurangzeb. He started kind of revolt in Deccan. So we discussed about Shivaji and especially Aurangzeb. We discussed that the relation between Mughal Emperor Aurangzeb and Shivaji. So we discussed the Treaty of Purandar, and that was very important for competitive exams point of view. And what happened, and what were the points of Purandar Treaty, and what happened exactly after Purandar Treaty, that we discussed in our class. And uh, after that we discussed that Shivaji the Raje realized that when he did not receive respectful kind of a treatment and from Aurangzeb, then he decided to coronate it himself. And in 1674, he did his Raj Tilak and he became the king of Marathas, and he made his capital Raigad. So he ruled 1674 to 1680 as a king of Maratha. And after the death of Shivaji the Raje, what happened, that we are going to discuss in today's class. So after the death of Shivaji, his son Shambhaji became the ruler. And most important, he ruled, Shambhaji became the king of Marathas. He continued the attacks of Mughal territories at the time. Both Ahmednagar and Bijapur were annexed to Mughal Empire. So, we know that Aurangzeb conquered Bijapur and Golconda in 1686 and 1687. The Mughal Emperor Aurangzeb turned all his energy and attention to Marathas, because at that time he focused on Bijapur and Golconda and Marathas. We can say like this, that at that time there were three uh, focus point of Aurangzeb. Bijapur, he had to conquer completely. No doubt, Bijapur and Golconda under Mughal territory, but not completely, as they were sending revenues to Mughals. But in 1687 and 1687, Bijapur and Golconda completely conquered by Aurangzeb. That's why Aurangzeb focused completely on Marathas. And that was the time period of Shambhaji, the king of Maratha. 1680 to 1689 he ruled, but unfortunately Shambhaji was captured in 1689 and executed. So his infant son Shahuji was taken captive, and he looked after, Aurangzeb looked after his son Shahuji at his haram. So the brother of Shambhaji, Rajaram, took refuge at Jinji in the Konkan. The name of his son was Shivaji III, who became the king of Marathas in 1700, while his mother Tarabai acted as his regent. वेल स्टूडेंट, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. इस स्टोरी को एक बार इस तरह से डिस्कस करते हैं, थोड़ा फैमिली ट्री. अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैमिली ट्री ऑफ मराठास. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मराठों की स्टोरी के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आफ्टर शिवाजी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवाजी ruled 1674 to 1680 as a Maratha king. And after the death of Shivaji had two sons, Shambhaji and Rajaram. So 1680 to 1689, Shambhaji ruled as king of Maratha Empire. And after Shambhaji death by Aurangzeb, Raja Ram became the ruler, but he struggled a lot. And 1689 to 1700, Aurangzeb sent his army to arrest Raja Ram, but he did not get success. And finally, after Raja Ram, his wife Tarabai
he had two wives, one Tarabai and second Rajaswabai. एंड द वाइफ ऑफ शंभाजी वॉज येशुबाई। तो शंभाजी की जो शादी है वो येशुबाई से हुई। राजा राम की शादी राजसबाई और ताराबाई से हुई। आफ्टर राजा राम के बाद ताराबाई ने मराठों की कमान को संभाला। एंड ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1700 टू 1707 शी बिकेम द फर्स्ट मराठा वुमेन रूलर इन मराठा एम्पायर। फाइन। सो ताराबाई ने उस पूरे एम्पायर को हैंडल किया, उसको टैकल किया वेरी स्मार्टली। एंड आफ्टर दैट शी डिसाइडेड टू अपॉइंट हिज सन Shivaji as a next ruler. So she was willing to appoint his son Shivaji as a next ruler. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजसबाई उस समय सामने आई और राजसबाई ने कहा कि नहीं दीदी, शंभाजी जो मेरा सन है वो इन दोनों भाइयों में बड़ा है, सो नाउ ही वुड बी द नेक्स्ट मराठा रूलर। अब एक एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ बिटवीन ताराबाई एंड राजसबाई। ताराबाई का स्टैंड ये था, ताराबाई was willing at that time to appoint Shivaji as a next Maratha king, Shivaji as a next Maratha king who was the son of Rajaram and Tarabai. Why? Because Tarabai said कि जिस समय मराठों पर एक तरह से प्रेशर पड़ा, आफत आई, उस समय आई टैकल्ड मराठा एम्पायर। तो मेरा बेटा डिजर्व करता है उस मराठा एम्पायर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और आप उस समय कहाँ थे जब मराठों के ऊपर संकट आया? तो आप तो उस समय सामने नहीं आए। तो दैट्स वाई डिजर्विंग जो कैंडिडेट है, डिजर्विंग जो रूलर है वो मेरा सन होगा। तो यहाँ पे इन दोनों वाइफ्स ऑफ ताराबाई, राजसबाई, राजा राम के बीच की जो दो वाइफ है ताराबाई और राजसबाई, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि शंभाजी और शिवाजी में नेक्स्ट रूलर कौन होगा ये डिसाइड करना बड़ा टफ हो गया। और उस समय इन नॉर्थ इंडिया मुगल्स were watching that situation, और जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि situation became very worse, and at that time in North India Muazzam became the ruler 1707 and he took the title Bahadur Shah first. We already discussed later Mughal rulers. तो उनके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एक तरह से एक क्लेवरनेस उस समय मुगलों ने दिखाई, और उन्होंने क्या करा कि जो येशुबाई और उसके बेटे शाहू को उन्होंने कैप्चर किया हुआ था अपने हरम में, उनका लुक आफ्टर कर रहे थे वो अपने हरम में, दे सेंट हिम फ्री। इन्होंने उसको फ्री कर दिया, उसको रिलीज कर दिया और उसको बोला कि जाओ आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। अब आप समझ गए मुगलों की क्लेवरनेस क्या थी कि ऑलरेडी यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं जो फाइट कर रहे हैं नेक्स्ट मुगल एम्परर टू बिकम नेक्स्ट मराठा एम्परर, कि अब नेक्स्ट मराठा एम्परर कौन बनेगा। और यहाँ पे अगर शाहू को भी भेज दिया जाए तो ये तीनों आपस में लड़ मर के जो रही सही एक एक मराठों की जो थोड़ी बहुत अब वहां पे एक रेपुटेशन है उसको भी स्पॉइल कर दिया जाए, यानी इनके फैमिली डिस्प्यूट को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। तो दे रिलीज्ड मुअज्जम रिलीज शाहू एंड ही एडेड फ्यूल टू फायर। तो कहा जाता है कि फिर येशुबाई भी आ गई और उसने कहा कि मेरा बेटा शाहू जो है वो नेक्स्ट मराठा किंग होगा। शंभाजी को सपोर्ट कर रही थी राजसबाई उसकी मदर, और शिवाजी को सपोर्ट कर रही थी उसकी मदर ताराबाई। तो तब इन तीनों बहुओं ने डिसाइड करा, देन ऑल दीज डॉटर इन लॉज डिसाइडेड कि हम लोग पेशवाओं को इनवाइट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट मराठा रूलर कौन होगा। पेशवाज वर लाइक अ प्राइम मिनिस्टर और मेन कंसल्टेंट ऑफ मराठाज, ऑलवेज उनके कंसल्टेंट रहे। तो उस समय बालाजी विश्वनाथ को इनवाइट किया गया कि आप आए और आप बताएं कि नेक्स्ट मराठा किंग कौन होगा। सो बालाजी विश्वनाथ ने ये डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट रूलर होगा वो होगा शाहू, और चूंकि अभी ये माइनर है तो उसके केयर टेकर बनेंगे पेशवा। तो शाहू तो कमान संभालेगा पुणे में, एंड ताराबाई के कंट्रीब्यूशन को भी हम लोग नेग्लेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम लोग ताराबाई को देते हैं कोल्हापुर का जो एरिया है वो, वहां पे रूल करेंगे शिवाजी। एंड जो शंभाजी हैं द सन ऑफ राजा राम एंड राजसबाई, उनको दे दिया गया सतारा। तो एक तरह से पूरा मराठा एम्पायर जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी शिवाजी रूल्ड
कोल्हापुर, इन्होंने कोल्हापुर में रूल किया। शंभाजी रूल्ड सतारा, उनको सतारा का पोर्शन दे दिया गया। एंड शाहू बिकम द मराठा किंग इन पुणे एंड पेशवा बिकेम द केयर टेकर ऑफ शाहू। यानी जो मेन ब्रांच है वो शाहू रहेगी, बिकॉज शाहू जो है इनमें एक तरह से सबसे बड़ा है, तो दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड नेक्स्ट मराठा किंग इन पूना वुड बी शाहू महाराज। सो ये एक स्टोरी थी कि कैसे मराठों से पेशवाओं की एंट्री हुई इन एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन्होंने धीरे धीरे पूरा जो एक सिस्टम है वो अपने हाथ में लिया, एंड सिग्नेटरी अथॉरिटी was in the hand of शाहू। फाइन, तो अब स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। नाउ विल डिस्कस व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली आफ्टर दैट। सो जैसा अभी हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया that Balaji Vishwanath was appointed Peshwa in 1713 by the Maratha king Shahuji. The post of Peshwa became hereditary later on. ताराबाई सेटअप एट कोल्हापुर, जैसा भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। वेल जो बालाजी विश्वनाथ है उनका जो टाइम पीरियड है एज ए पेशवा 1707 टू 1720 है, लेकिन उनको जो मेन पावर्स ऑफ पेशवा दी गई एंड जो उनकी हेरिडिटरी, जो पेशवा बिकेम हेरिडिटरी, वो टाइम पीरियड हिस्टोरियन 1713 से मानते हैं। बट जो टाइम पीरियड है एज ए केयर टेकर ऑफ मराठा किंग was 1707 to 1720. Fine. So Balaji Vishwanath was the first Peshwa, and that question is very important in competitive exams point of view. So well, next आगे चलते हैं। वेल उसके बाद सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वी डिड नॉट डिस्कस इन लास्ट क्लास, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी। सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? Maratha Empire under Shivaji extended to Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu, and provinces were divided into parganas। मतलब पूरा एक एम्पायर है, जैसे आज हम मानते हैं कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, उसी तरह से प्रोविंसेस, शिवाजी के एम्पायर में प्रोविंसेस थे, एंड प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स उस समय के परगनास थे, एंड परगनास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। तो उस समय डिस्ट्रिक्ट और तहसील को परगनास कहा गया शिवाजी के एम्पायर में। एंड तो लाइक दिस की सेंट्रल गवर्नमेंट, मराठा किंग, देन प्रोविंसेस एंड देन parganas and then village. So that was kind of decentralization of Maratha Empire. So to strengthen the administration, Shivaji abolished the Jagir system, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, and begin giving cash salary to his officers। यानी उन्होंने अपने ऑफिसर्स को कैश सैलरी देनी शुरू करी। He abolished जागीरदारी, but he continued to give land grants for temples and school। इन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए टेम्पल्स को, स्कूल को। That's why Shivaji was very famous and he worshipped like a god in Maharashtra, because he did lots of welfare during his time period. And during his tenure, hereditary occupation of post was abolished, and he was a great character, and he was great personality in Maharashtra. So his administration was highly praised by the historians. So well, next after that, हम अगर बात करें तो उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, लाइक अ कैबिनेट, so there were 8 ministers in the cabinet of Shivaji Maratha, and that's why it was known as Ashtapradhan। so Peshwa or Prant Pradhan, Pant Pradhan, Prime Minister, like we can say that most important designation after Maratha king। यानी मराठा किंग के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कोई पोस्ट थी, तो वो पोस्ट थी पेशवा। उसके बाद अमात्य बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है, दैट अमात्य या मजूमदार जो है वो कौन होते थे शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप बोल सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री, वाक्यानवीस और मंत्री होम मिनिस्टर एंड इंटरनल अफेयर्स, दबीर और सुमन फॉरेन मिनिस्टर, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, सचिव सेक्रेटरी प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स, पंडित राव रिलीजियस मैटर्स को देखते थे, एंड सरे नौबत सेनापति कमांडर इन चीफ, एंड न्यायाध्यक्ष चीफ जस्टिस। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 मिनिस्टर्स थे, ये जो कैबिनेट है उनकी अष्ट प्रधान के नाम से इसको जाना जाता था। वेल उसके बाद हमने आपके साथ इन कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में।
अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं पेशवाओं का जो टेन्योर रहा उनको एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वेल अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, जो इनका एक तरह से हिस्टोरियंस टाइम पीरियड बताते हैं एज ए जो मेन सत्ता है वो इनके हैंड में आ चुकी थी, अंडर हिज हैंड। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, इनका जो सन है 1720 से 1740, 20 इयर्स ही रूल्ड एंड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड मराठा एम्पायर स्प्रेड अप टू नॉर्थ इंडिया, और मुगल्स तक इनके अंडर में आ चुके थे पेशवाओं के। सो दैट्स व्हाई ये हाईली प्रेज्ड किए जाते हैं द टेन्योर ऑफ बाजीराव फर्स्ट। एंड उसके बाद बालाजी बाजीराव बिकेम द थर्ड पेशवा, एंड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड। और उसके बाद जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड पेशवा, बट अनफॉर्चुनेटली पेशवा वाज डिफीटेड एंड इसका इनडायरेक्टली जो बेनिफिट है वो अंग्रेजों को गया, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्कर्ड दिल्ली बिकॉज अहमद शाह अब्दाली वाज आउटसाइडर एंड ही वेंट बैक बिकॉज during his stay in India, the situation of Afghanistan became miserable and outsiders started to attack on Afghanistan. So that's why he was willing at that time to save his main territory, his main kingdom. That's why he went back to Afghanistan. And during the absence of Ahmad Shah Abdali, East India Company took opportunity to conquer Delhi. So that's why historians always say that indirectly, the third battle of Panipat gave benefit to East India Company. So third Balaji Bajirao, third Peshwa, and after that Madhav Rao became the fourth Peshwa, and during his time period again Peshwa or Marathas gained their prestige, that reputation, and most important, he was very brilliant, Madhav Rao. And ऐसा ऐसा कहते हैं historians that after the death of Madhav Rao, जो डिक्लाइन फेज पेशवाओं का देखने को मिला, वो डिक्लाइन उस बहुत बड़ा डिक्लाइन था देन अगर हम कंपेयर करें आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। यानी कहा जाता है कि पेशवाओं को जो मराठा एम्पायर था उसको दो सेटबैक लगे। एक तो आफ्टर द डेथ ऑफ आफ्टर पानीपत बैटल पेशवाओं पूरी तरह से डिक्लाइन फेज पे चले गए, लेकिन उसको फिर से रिकवर किया माधव राव ने, और माधव राव के डेथ के बाद पेशवा जो है दोबारा से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए। एंड उसके बाद नारायण राव जो है बिकेम द फिफ्थ पेशवा। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी टसल शुरू हो गई, और उस टसल का मेन रीजन था रघुराम राव। बिकॉज रघुराम राव जो है वो एक तरह से नारायण राव के अगर आप देखेंगे तो ये इनके अंकल और ये इनका नेफ्यू है, तो ही वॉज विलिंग टू बिकम मराठा किंग, ये मराठा किंग बनना चाहते थे। एंड दैट्स व्हाई ही टुक सपोर्ट फ्रॉम दी he took support from the ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम, और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको काफी सपोर्ट करा। दैट्स व्हाई फर्स्ट आंगल मराठा बैटल वाज स्टार्टेड। अभी जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के रिलेशन को डिस्कस करेंगे तो देयर वर थ्री बैटल्स बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास। सो फर्स्ट बैटल was held in 1775 to first battle between Anglo Maratha war was 1775 to 1782, that was the first battle of Marathas. And उसके बाद second Anglo Maratha war was held 17 not 17, in fact 1802 में second battle of Anglo Maratha battle held हुई, जिसे बाजीराव सेकंड ने एक तरह से सब्सिडरी अलायंस किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। एंड थर्ड एंग्लो मराठा बैटल और वॉर वाज हेल्ड अराउंड 1816 टू 1818। तो ये एक लास्ट बैटल मानी जाती है। इसके बाद मराठा एम्पायर पूरी तरह से डिसअपियर हो गया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्कर्ड पूना रीजन। सो वेल ये थ्री बैटल्स वर वेरी फेमस। हमने आपके साथ जैसे सिखों की बैटल डिस्कस की, एंग्लो सिख वॉर हमने आपके साथ डिस्कस की, एंग्लो मैसूर फोर वॉर हमने आपके साथ डिस्कस की करी थी, उसी तरह से एंग्लो मराठा वॉर विल डिस्कस इन टुडेस क्लास। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। सो वेल नारायण राव बिकेम द रूलर, देन उसके बाद बाजी राव सिक्स्थ रूलर बिकेम द सिक्स्थ पेशवा रूलर।
बाजीराव 1796 टू 1818। उसके बाद बीच में जैसा माधव नारायण जो है वो रूल करने आए 1774 टू 1795। देन सेवेंथ बाजीराव सेकंड। और उसके बाद फिर मराठों की पेशवाओं की जो कहानी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली कॉन्कर्ड दैट रीजन। फाइन। तो वेल आगे चलते हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। अब आप यहाँ पे यू कैन रियलाइज कि मराठा एम्पायर 1760 में, यानी बिफोर द बैटल ऑफ पानीपत, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मराठा एम्पायर है, यानी पूरा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, और ये पूरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, इवन सम पार्ट ऑफ बंगाल एंड अप टू दिल्ली तक, ये पूरा रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ पेशवाज इन 1760। सो वेल, नाउ कम टू नेक्स्ट। उसके बाद मराठा कॉन्फेडरेसी की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बालाजी विश्वनाथ बिकेम द फर्स्ट पेशवा तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें से हम किसी को कोई परेशान नहीं करेंगे, हम लोग पुणे में रूल करेंगे। और जिस रिलेटिव ने जहाँ पे जो भी कैप्चर किया हुआ है, जो जहाँ पे रूल कर रहा है वो रूल करता रहे, क्योंकि अगर हम आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, एक दूसरे के रीजन को कॉन्कर करने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट फाइट against East India Company, so against Mughals. So that's why that was very smart decision by Balaji Vishwanath. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भोसले जो है वो नागपुर के भोसले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधियाज एंड पूना के पेशवाज। तो ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से कंपटीशन में आता है कि Pune was ruled by, Gwalior was ruled by, Indore was ruled by, Baroda was ruled by, and Nagpur was ruled by। तो वो कई बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, तो ये आपको कीप इन माइंड। नाउ कम टू नेक्स्ट। वेल, अब बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ की। तो जैसा भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, बालाजी विश्वनाथ 1713 टू 1720, दैट वाज अ टाइम पीरियड ऑफ बालाजी विश्वनाथ, एंड he was the first पेशवा। he made the post of पेशवा hereditary। Balaji Vishwanath gained certain rights from then Mughal Emperor Farrukhsiyar. We already discussed in our class when we discussed later Mughal emperors, and Farrukhsiyar gave concession to Balaji Vishwanath because at that time Farrukhsiyar was very weak ruler, and he was known as Lampat Murk, means foolish king, and he was not ready to fight against Peshwas, because Peshwas at that time were their zenith, were their peak, and that's why he was not willing to fight with Peshwas. And firstly, the Mughal emperor recognized Shahu as Maratha king। ये बहुत बड़ी बात थी कि शाहू को मराठा किंग डिक्लेयर कर दिया गया मुगल्स के द्वारा। मतलब ये इसी तरह से है लाइक दिस कि किसी कंट्री में, जैसे अभी हमने बात करा अफगानिस्तान में तालिबान से दोबारा टेक ओवर किया, बट कई सारी कंट्रीज ने उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि नहीं हम आपको नहीं मानते, बिकॉज जो वहां पे डेमोक्रेटिक वे में पहले गवर्नमेंट चल रही थी दैट वाज वेरी गुड, बट आप कू करके यहाँ पर आए एंड यू कैप्चर्ड। बट धीरे धीरे कई सारी कंट्रीज ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया एंड दे डिक्लेयर कि ओके यू आर द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है ऑलवेज, आज भी टुडे भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन वी कैन से। एंड इट एवरी गवर्नमेंट वांट्स दैट कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन, मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मेरी एक आइडेंटिटी हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि पता चला यूएस से रशिया, बड़े बड़े जितने सुपर पावर्स हैं, यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वही मेरी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इट इज वेरी टफ टू रूल इन दैट कंट्री। तो आज भी ये होता है, और उस समय मुगल एम्परर्स अगर आपको डिक्लेयर करें यस यू आर द मराठा किंग, तो इट मींस ये बहुत बड़ी बात है, यानी आपको रिकॉग्नाइज कर लिया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। Secondly, he allowed Shahu to collect Chauth and Sardeshmukhi from 6 Mughal provinces in Deccan। देखो, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि एट दैट टाइम पेशवाज वर सुपीरियर देन मुगल्स, लेकिन मुगल्स की जो एक शान और शौकत थी, जो अकबर के समय से, जहांगीर और शाहजहां के समय से चल रही थी, सो दे वर नोन एज the head of North India। No doubt, at that time, their rulers were foolish and they were under Peshwas, and Peshwas compelled them to give Shahu as a to recognize Shahu as a Maratha king। तो ये बहुत बड़ी बात थी। That's why historians से ऑलवेज
कि इस समय पेशवा जो है वो अपनी पीक पर थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों को कंपेल कर दिया कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, शाहू को रिकॉग्नाइज किया जाए, एंड मुगल्स वर रूलिंग अंडर द पेशवा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। वेल, उसके बाद बालाजी राव के अगर बारे में बात करें, एंड ही बिकेम द नेक्स्ट पेशवा, सेकंड पेशवा। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ। द मराठा पावर रीच्ड इट्स zenith under him. He started the confederacy among Marathas chief. Under the system of confederacy, each Maratha chief was assigned a territory which was administered autonomously. सो एक बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया। जैसा हमने आपको बताया कि जो मैनी मराठा फैमिलीज गेन प्रोमिनेंस, जैसे बड़ौदा में गायकवाड़ रूल्ड, एंड इन नागपुर भोसले रूल्ड इन नागपुर, होलकर रूल्ड इन इंदौर, सिंधिया रूल्ड इन ग्वालियर, एंड पेशवाज रूल्ड इन पुणे. So that was a very talented decision of Balaji Rao, and he followed the policy of Balaji Vishwanath. And most important, he was the greatest Hindu warrior, because जैसे बोला जाता है कि उस समय की इनका एक पर्पस था कि भगवा जो है वो एक केसरी रंग जो है पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया जाए। हिंदुइज्म का जो एक भावना थी, फीलिंग थी, पैट्रियोटिक फीलिंग जो थी, वो इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। एंड दैट्स वाई ये जो मैप अगर आप देखेंगे इस मैप में, तो ये पूरा पेशवा एम्पायर है। और आप देख सकते हैं कि इनका पर्पस था कि अटक उस समय एक तरह से पंजाब, वेस्ट पंजाब का एक प्रोविंस था, वहां तक ये चाहते थे कि पेशवाओं का जो एम्पायर है, दे वांटेड टू स्प्रेड पेशवा एम्पायर अप टू अटक। सो तमिलनाडु टू कश्मीर, दैट वाज अ प्लान ऑफ बाजीराव फर्स्ट। वेल, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस स्टेटमेंट भी है इनका, जैसा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो द सैफ्रॉन फ्लैग मस्ट फ्लाई फ्रॉम कृष्णा टू द इंडस, हिंदुस्तान इज आर्स। यानी हम जो अपना सैफ्रॉन फ्लैग है वो हम कृष्णा रिवर से लेकर इंडस रिवर तक उसको फहराना चाहते हैं। वी वांट टू फ्लाई आवर फ्लैग. So before Shahu Maharaj and his court, the young new Peshwa Baji Rao is said to have thundered, let us transcend the barren Deccan and conquer central India. मतलब इनकी एक प्लानिंग थी, सेंट्रल इंडिया को कॉन्कर किया जाए, नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया जाए, and many ministers were against that policy. But Baji Rao was very determined to conquer North India. Fine. Now come to next point. Well, एक बहुत फेमस इनका स्टेटमेंट है, strike at the trunk and the branches will fall of themselves. यानी ये जो मुगल ट्री है ना, आप इसकी ब्रांचेस को मत काटो, इनकी रूट पर अटैक करो, ताकि ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये पूरी तरह से फॉल डाउन हो जाए। सो फॉल ऑफ करा जाए, इनकी रूट पर अटैक किया जाए। सो लिसन but to my counsel and I shall plant the saffron flag on the walls of Atak. तो यानी ये एक प्लानिंग थी बाजीराव फर्स्ट की। सो दैट्स व्हाई historians praised that इन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया मुगल्स को एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को, एंड all his rivals. He gave great challenge. Well, Balaji Bajirao, 1740 to 1761, he became the third Peshwa. And Balaji Bajirao succeeded his father as Peshwa Bajirao first, with Shahu dying without any issues, and other nominated successor Ram Raja in Satara prison. Balaji Bajirao became the sole controller of Maratha kingdom. मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब शाहू महाराज की डेथ हुई, तो फिर उसके बाद पूरी तरह से वो जो कंट्रोल है पूना के पेशवाओं का, वो अंडर पेशवाज आ गया, क्योंकि एक सिग्नेटरी अथॉरिटी होता था। शाहू महाराज जो भी काम करते पेशवा ही थे, लेकिन लाइक अ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। लेकिन फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट भी एक तरह से पेशवाओं के कंट्रोल में आ गई। एंड ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द मुगल एम्परर अहमद शाह। अहमद शाह was Mughal emperor, हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो सब सक्सेसर ऑफ मुगल्स। 1752, according to which the Peshwa would protest the Mughal Empire from external and internal threats. That was the reason when Ahmad Shah Abdali attacked on Delhi, and Peshwa came to Delhi to protest or to give protection to the then Mughal emperor. So, well, for this, the Marathas would collect Choth from northwest provinces, along with the total revenue coming from Ajmer and Agra. So therefore, when Ahmad Shah Abdali invaded India, Maratha fought
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 and decline of Maratha power in India. So that was a decline of Maratha power in India. ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एक बहुत बड़ा सेटबैक थी फॉर पेशवाज। तो कहा जाता है कि इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। और जैसा हमने फिर से इस मैप को अगर हम देखें तो अप टू 1760 बिफोर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दैट वाज द सिचुएशन ऑफ पेशवा एम्पायर। फाइन, नाउ कम टू नेक्स्ट। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, बालाजी बाजीराव वाज द थर्ड पेशवा एंड पानीपत की बैटल के 6 महीने के बाद बालाजी बाजीराव की डेथ हुई और उसके बाद नेक्स्ट पेशवा बने माधव राव। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। सो reign of Peshwa Madhav Rao first. Peshwa Madhav Rao had inherited a Maratha empire reeling from the after effects of disaster at Panipat. After effect यानी अब कितना बड़ी बात है, आपका ट्रेजरी जो है was nearly empty due to other war campaigns and extravagant spending. He ensured that unnecessary funding was cut down and financial discipline was upheld. That's why Madhav Rao was highly praised by the historians कि जिस तरह से माधव राव ने दोबारा से रीओरिजिनेट करा पेशवाओं को, वेल स्टैब्लिश किया, that was amazing and that's why he was declared a great Peshwa even than Bajirao first. Bajirao first was very talented and he spread saffron flag from Krishna river to Attak. But Madhav Rao ने थर्ड बैटल के बाद जिस तरह से पेशवाओं को दोबारा से रीस्टैब्लिश किया, that was amazing. So on August 22, 1762, the hostility between Peshwa Madhav Rao and his uncle Raghunath Rao came out into the open when Raghunath Rao raised his own army against the Peshwa. तो वेल जैसा हमने आपको अभी ये जो एक फैमिली ट्री जो आपको दिखाया एंड ऑल रूलर्स, तो उसके बाद जैसा रघुनाथ राव थे वो उन्होंने झंडा बुलंद किया अगेंस्ट माधव राव। और ये अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से चाचा भतीजा है ये। और फिर उसके बाद रघुनाथ राव ने ये बात डिक्लेयर करी कि मुझे जो है नेक्स्ट मराठा किंग बनना है। तो and he took support from East India Company. Fine, come to next. So well, Peshwa Madhav had to cut short his campaign against Hyder Ali when he contracted tuberculosis in 1770, and first Anglo-Maratha war was started 1775 to 1781. अब इसमें क्या हुआ कुछ इस तरह से कि माधव राव जो है उनकी डेथ हो गई एंड देयर वाज अ टसल ऑफ फॉर पावर इन द मराठा कैंप। मराठा कैंप एक टसल शुरू हुई चाचा भतीजा में, और उनके जो ब्रदर थे नारायण राव बिकेम द पेशवा बाय हिज अंकल रघुनाथ राव, बट हिज अंकल रघुनाथ राव वांटेड टू बिकम द पेशवा। फॉर दिस ही सॉट द हेल्प ऑफ द इंग्लिश, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में भी थोड़ा सा इस बात को लेकर डिस्प्यूट था वेदर टू हेल्प पेशवा और नॉट, यानी हमें इनके इंटरनल मैटर्स में फंसना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर थोड़ा सा जद्दोजहद हुई। और कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में साइन हुई अकॉर्डिंग टू विच रघुनाथ राव सीडेड Salsett and Bassein to the English, and in return he was given 2500 soldiers. So the British and army of Raghunath Rao attacked the Peshwa and won. यानी आप इसको इस तरह से इस स्टोरी को समझ लीजिए कि रघुनाथ राव टुक सपोर्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिक्वेस्ट करी बॉम्बे ब्रांच से, क्योंकि इनकी एक ब्रांच बॉम्बे में थी, एंड ही रिक्वेस्टेड टू बॉम्बे ब्रांच कि प्लीज हेल्प मी। बॉम्बे ब्रांच ने हेल्प करी रघुनाथ राव की, बट जो कैलकाटा इनका मेन हेडक्वार्टर था, जो इनकी कैपिटल थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहां से इनको ऑर्डर आए बॉम्बे ब्रांच को कि प्लीज डू नॉट इन्वॉल्व इन दीज इंटरनल मैटर्स, क्योंकि अभी हमारे पास और बहुत सारी सरदर्दी है, हमारे पास और बड़े हेडेक्स है, हमें और बड़े सारे डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना है, तो हमें पेशवाओं के अभी मामले में भी शुड नॉट पोक आवर नोज इन इंटरनल मैटर्स ऑफ पेशवाज। लेकिन बॉम्बे कि ये प्लानिंग थी कि रघुनाथ राव को एज ए पपेट बना के पेशवाओं को टेक ओवर करा जा सकता है। दैट वाज द प्लानिंग, दैट वाज द क्लेवरनेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो उन्होंने सपोर्ट करी एंड दे तरह से उन्होंने कंपेल किया, वो साइंड अकॉर्डिंग टू विच रघुनाथ राव के साथ एक पैक्ट हुआ कि हम आपको हेल्प करेंगे और आप हमें सालसेट और बसीन देंगे, एंड दैट ट्रीटी वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775।
वेल उसके बाद द ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल अंडर वॉरेन हेस्टिंग annulled this treaty, and new treaty, the Treaty of Purandar, was signed in 1776 between the Calcutta Council and Nana Fadnavis, a Maratha minister. तो कहा जाता है कि फिर उसके बाद जो कैलकाटा ब्रांच थी उसने इंटरफेयर किया, और कैलकाटा ब्रांच फेवर में थी एक तरह से मेन पेशवा ब्रांच, यानी कैलकाटा ब्रांच वाज विलिंग टू सपोर्ट नारायण राव द ब्रदर ऑफ माधव राव, यानी वो रघुनाथ राव के अगेंस्ट है। यानी अब आप समझ रहे हैं इस स्टोरी को कि बॉम्बे जो ब्रांच है वो सपोर्टिंग रघुनाथ राव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बट कैलकाटा ब्रांच ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो सपोर्टिंग नारायण राव। तो उस समय एक ट्रीटी हुई, पुरंदर ट्रीटी 1776 की, बट द ब्रिटिश एस्टैब्लिश एट बॉम्बे वायलेटेड दिस ट्रीटी, बट द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट एट बॉम्बे वायलेटेड दिस ट्रीटी एंड शेल्टर्ड रघुनाथ राव। लेकिन फाइनली ऐसा हिस्टोरियंस बताते हैं कि बॉम्बे का जो स्टैब्लिशमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, दे रिक्वेस्टेड इन लंदन, उनकी जो मेन कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर ये एक बहुत गुड अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड कलकत्ता जो हमारा हेडक्वार्टर है वाज नॉट एबल टू ट्राई इन दिस सिचुएशन, दैट इफ वी वुड हेल्प रघुनाथ राव वी कैन कॉन्कर पेशवास, लेकिन नारायण राव की हेल्प करके हम पेशवास को कॉन्कर नहीं कर सकते और इनके डिस्प्यूट को सॉल्व ही कर देंगे हम। तो ऊपर से ऑर्डर आए कैलकाटा ब्रांच को कि नहीं, वट एवर बॉम्बे establishment was doing that was correct and please support Bombay establishment of East India Company। तो कैलकाटा को ऑर्डर आ गए लंदन से कि आप बॉम्बे एस्टेब्लिशमेंट को आप सपोर्ट करो। सो ये अभी तक हमें दो ट्रीटी समझ में आई, ये बॉम्बे एस्टेब्लिशमेंट की ट्रीटी थी और ये कैलकाटा एस्टेब्लिशमेंट की ट्रीटी थी विद पेशवास। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। उसके बाद कहा जाता है कि नाना फडणवीस जो थे वो बहुत टैलेंटेड मिनिस्टर थे पेशवाओं के, वेंट अगेंस्ट हिज ट्रीटी विद द कैलकाटा काउंसिल एंड ग्रांटेड अ पोर्ट टू द वेस्ट कोस्ट टू द फ्रेंच। अब नाना फडणवीस को लगा कि अगर कैलकाटा वाले हमें सपोर्ट नहीं करे तो डेफिनेटली फिर हम लोग फ्रेंच कंपनी से हेल्प लेते हैं। नाना फडणवीस कौन थे, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाज एन इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर, he was influential minister and statesman of the Marathas। Right, so he was influential minister and statesman of the Marathas empire during the Peshwa administration in Pune, India। James Grant Duff states that he was called the Maratha Machiavelli by the Europeans, यानी इनको मैकियावेली से कंपेयर किया था। मैकियावेली एक इटालियन फिलोसफर ऑथर थे और जो रेनेसा हुआ था इटली में, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मैकियावेली का। सो नाना फडणवीस के जो ओहदा था, जो उनकी रेपुटेशन थी, वो कुछ इस तरह की थी पेशवाओं में, यानी उनकी बात को कोई नहीं काटता था, एंड ही वाज नो डाउट वेरी टैलेंटेड। So this led the British to advance a force towards Pune, and there was a battle at Vadgaon near Pune in which the Marathas under Mahaji Sindhia secured a decisive victory over the English। और फिर कहा जाता है द इंग्लिश वर फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ वडगांव इन 1779, एंड फाइनली नाना फडणवीस की क्लेवरनेस से, उनकी स्मार्टनेस से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट किया और उनको कंपेल किया एक ट्रीटी साइन करने के लिए। तो उस समय कैलकाटा एस्टेब्लिशमेंट ने बॉम्बे एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि हमने आपको बोला ही था कि आप इनके मैटर में इंटरफेयर मत करो, लेकिन आपने हमारी सुनी नहीं। और हमें पता है कि नाना फडणवीस ही इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे से सजेस्ट कर रहे हैं नारायण राव को, और रघुनाथ राव बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, और आप इनके चक्कर में मत पड़े रघुनाथ राव के, अदरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी की इंसल्ट हो जाएगी अगर हम इस वॉर में हारते हैं। लेकिन फाइनली बॉम्बे एस्टेब्लिशमेंट वाज नॉट रेडी टू लिसन, और वही हुआ जो कलकत्ता वालों ने बोला था, वडगांव की ट्रीटी करनी पड़ी, एंड देयर वाज अ सीरियस series of battle at the end of which the Treaty of Salbai was signed in 1782। This ended the first Anglo-Maratha war। लेकिन अब चूंकि ये एक प्रेस्टीज इशू है ईस्ट इंडिया कंपनी का, सो कैलकाटा वाज कंपेल्ड टू हेल्प बॉम्बे एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अब आप हारे हो तो अब आपको सपोर्ट करना है अपने बॉम्बे एस्टेब्लिशमेंट को। तो फाइनली एक और वॉर हुई, और उस वॉर में एक ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो लास्ट ट्रीटी ऑफ सालबाई है जिससे इस एंग्लो मराठा वॉर का एंड हुआ, दैट वाज ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब इस ट्रीटी ऑफ सालबाई में क्या हुआ, दैट वी विल डिस्कस, यानी क्या रिजल्ट आए इसके वो देखते हैं। वेल द ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन सालसेट एंड बड़ोच। It also obtained a guarantee from the Marathas that they would retake their possessions in the Deccan
from Hyder Ali of Mysore. The Marathas also promised that they would not grant any more territories to French company. Raghunath Rao was to receive a pension of rupees 3 lakh every year. All territories taken by the British after the Treaty of Purandar were ceded back to the Marathas. The English accepted Madhav Rao II, son of Narayan Rao, as the Peshwa. और फाइनली वही हुआ जो कलकत्ता एस्टेब्लिशमेंट शुरू से बोल रहा था कि हम लोग हारेंगे, इसलिए आप इंटरफेयर मत करो। और फाइनली ट्रीटी ऑफ सालबाई से कुछ इस तरह का बीच बचाव का रास्ता निकाला गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की भी रैपो बची रहे, क्योंकि उनको पता था कि पेशवाओं में नाना फडणवीस से टक्कर लेना वो अभी हम उस सिचुएशन में नहीं है। तो फिर कलकत्ता एस्टेब्लिशमेंट, बॉम्बे एस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ सालबाई करके एक बीच बचाव का रास्ता निकाला और किसी तरह अपनी रेपुटेशन को एक तरह से बचाया, सिक्योर किया। दे सिक्योर देयर रेपुटेशन। सो ये जो सीरीज ऑफ ट्रीटीज है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये 4 ट्रीटीज एग्जाम में कंपटीशन में काफी बार पूछी जाती है कि 1 बाय 1 जितनी भी ट्रीटीज हुई उनको आप एक्सप्लेन करें, उनको क्रोनोलॉजिकल मैनर में उसको लगाए। सो दैट वाज द एंड ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। नाउ कम टू सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अब सेकंड बैटल में क्या हुआ? After Tipu Sultan's Mysore was captured by the British in 1799, the Marathas were the only major Indian power left outside of British domination. यानी अब ब्रिटिशर्स का एक ही टारगेट, इसीलिए कलकत्ता एस्टेब्लिशमेंट उस समय बोल रहा था कि वी हैड टू फाइट अगेंस्ट टीपू सुल्तान। सो वी वर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट विद मराठास और विद पेशवास। लेकिन अब हम इस सिचुएशन में हैं because we already defeated, we already killed Tipu Sultan, we already conquered Mysore. Now we are ready to fight against Peshwas. So at that time, the Maratha Confederacy consisted of 5 major chiefs: the Peshwa at Pune, the Gaikwad at Baroda, Holkars Indore, the Sindhias at Gwalior, and the Bhosle at Nagpur. So well, there were internal squabbles among themselves. In सब में आपस में खींचातानी तो थी, नो डाउट, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू वेरी वेल। सो बाजीराव सेकंड, सन ऑफ रघुनाथ राव, अब जैसे इनके पापा ने परेशान किया, उसके बाद बाजीराव सेकंड ने उस कमान को संभाला एंड वाज इंस्टॉल्ड एट द पेशवा आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव सेकंड। अब माधवराव की सेकंड के बाद बाजीराव सेकंड जो है उसको पेशवा बना दिया गया, क्योंकि उनके चाचा, उनके पिताजी ने बहुत स्ट्रगल करी थी। सो दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड दैट बाजीराव सेकंड नाउ would be the next Peshwa. But in the Battle of Pune in 1802, Yashwantrao Holkar, the chief of the Holkars of Indore, defeated the Peshwas and the Sindhya. अब आपस में इन सब के टसल चल रही है, जितनी भी मराठा फैमिलीज है, तो होलकर ने पेशवा और सिंधिया को डिफीट कर दिया एक बैटल में। बाजीराव सेकंड sought British protection. बाजीराव सेकंड was not talented as his father was not talented, रघुनाथ राव। तो वो एकदम घबरा गया and he was shocked having seen this defeat, और वो at once he rushed towards East India Company to take help and signed the Treaty of Bassein with them. Treaty of Bassein, very famous, and that was the starting of Second Anglo-Maratha War. So as per this treaty, he ceded territory to the British and agreed to the maintenance of British troops there. So that was subsidiary alliance. Subsidiary alliance हमने आपके साथ डिस्कस किया था. Lord Wellesley was a think tank between subsidiary alliance, and subsidiary alliance means that आपकी जो troops है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो आपके किंगडम में रहेगी, आप उस ट्रूप्स का यूज करोगे, कभी भी आपको कहीं कोई अटैक होता है तो यू कैन यूज आवर ट्रूप, लेकिन आपको उसके एक्सपेंसेस बियर करने, लेकिन आपको कभी भी कोई फर्स्ट अटैक नहीं कर रहा हमारी ट्रूप्स को लेकर। सो वेल द सिंधियाज एंड भोसले जो थे उनको ये एक्सेप्ट नहीं हुआ ये ट्रीटी। उनको लगा कि बाजीराव सेकंड ने ये क्या ट्रीटी कर ली इनके साथ, इस तरह से थोड़ी ना डरना था, हमारे पास आता, हम बात करते और हम होलकर को समझाते, या हम आपस में मिलकर होलकर पे अटैक करते। सो व्हाई ही वेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू टेक हेल्प, so did not accept this treaty, and this caused the second Anglo-Maratha war in central India in 1803. So Holkar also joined the battle against the English at a large stage, और फाइनली जब होलकर को ये लगा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारी डिस्प्यूट का फायदा उठा रही है और मेरे इस अटैक की वजह से बाजीराव सेकंड वाज कंपेल्ड टू डू
सब्सिडरी अलायंस, तो ये ठीक नहीं है, यानी हमारे फैमिली डिस्प्यूट में कोई थर्ड पर्सन बेनिफिट उठाए, दैट वाज नॉट करेक्ट। तो होलकर को भी थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ, लेकिन अभी फिलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन फुल स्विंग एंड ऑल द मराठा फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन दीज बैटल्स। तो ये सारी फोर्सेस जो है वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। सिंधिया साइंड द ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव इन 1803, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, और उसके क्या क्या पॉइंट थे वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। British got the territories of Rohtak, Ganga, Yamuna, Doab. Bhosle signed the Treaty of Devgaon in 1803, as per which the English acquired Cuttack, Balasore, and area of West Wardha River. The Holkar signed the Treaty of Rajghat in 1805, according to which they gave up Tonk, Bundi, and Rampur to the British. यानी कुल मिलाकर बाजीराव सेकंड ने सब्सिडी अलायंस किया, और उसके बाद वन बाय वन ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिंधिया, डिफीटेड भोसले एंड डिफीटेड होलकर्स. So that was the foolish step of Bajirao II to did a subsidiary alliance with East India Company. Fine. So well, ये एक बहुत important point था, और एक तरह से आप ऐसा मान सकते हैं कि पूरी तरह से अब ग्रिप में है ईस्ट इंडिया कंपनी के पेशवाज. So well, उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1817-1818 में. After the second Anglo Maratha war, third was held. The Maratha made one last attempt to rebuild their old prestige. मराठों ने फिर कोशिश करी अपनी ओल्ड प्रेस्टीज को रीबिल्ड करने की. They wanted to retake all their old possessions from the English. They were also unhappy with the British residents' interference in their internal matters. और बिल्कुल वो अनहैप्पी थे, और अनहैप्पी तो होना भी था, because you took the wrong step, क्योंकि अब आपने ट्रूप्स को जब अपने किंगडम में बिठा दिया, तो अब उनका जनरल, उनका गवर्नर ऑलवेज यहाँ पर आएगा, इंटरफेयर करेगा आपके मैटर्स में, और आपके किंगडम में उसकी आर्मी बैठी है, तो कभी भी वो आपको भी अटैक कर सकता है, क्योंकि आपने तो उसको अपने घर में बिठा रखा है. सो that's why historians said that through subsidiary alliance they killed two birds with one stone. एक तो आपकी आर्मी का खर्चा आपका दुश्मन उठा रहा है, और आप कभी अपने एनिमी पर अटैक करना चाहते हो, इफ यू वांट टू अटैक योर एनिमी, आपकी आर्मी ऑलरेडी इन द किंगडम ऑफ योर एनिमी टेरिटरी. So the chief reason for this war was a British conflict with the Pindaris, whom the British suspected were being protected by the Marathas. Pindaris जो है वो कहा जाता था उनकी एक नेवी आर्मी थी. Marathas always took help for navy point of view from the Pindaris, and Pindaris were East India Company. They were against East India Company. East India Company को ऐसा suspect हुआ, ब्रिटिश द ब्रिटिश सस्पेक्टेड कि पिंडारीज को सपोर्ट करते हैं मराठास, और पिंडारीज के साथ मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी जो है, दे वर डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. सो दैट बिकेम द रीजन. रीजन कुछ नहीं होता था, उनको खामखा का एक रीजन चाहिए होता था, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस जो है के बाद आपका फुल किंगडम उनके कंट्रोल में आएगा. ये एक हाफ स्टेप होता था सब्सिडरी अलायंस, और उसके बाद उनका टारगेट होता था कि बिना किसी बेवजह, विदाउट एनी रीजन, कोई पॉइंट रेज किया जाए टू टेक ओवर होल किंगडम. फाइन. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? आफ्टर दैट द मराठा चीफ्स, द मराठा चीफ पेशवा बाजीराव सेकंड, मल्लावराव होलकर एंड माधोजी सेकंड भोसले फोर्स्ड अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द इंग्लिश. फिर बाजीराव सेकंड को लगा कि अब हमें मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना करना चाहिए. बाजीराव सेकंड, होलकर and Bhosle, they made one solid group against East India Company. Daulat Rao Sindhia, the fourth major Maratha chief, was pressured diplomatically to stay away, but the British victory was swift. And finally Britishers, क्योंकि उस समय तक काफी वीक हो चुके थे मराठा फैमिलीज आपस में अमंग डिस्प्यूट की वजह से, and East India Company took that benefit, and finally they defeated all these Maratha families. तो रिजल्ट क्या हुआ? द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वाज साइंड इन 1817 बिटवीन सिंधिया एंड ब्रिटिश. Treaty of Mandsaur was signed between the British and the Holkar in 1818. An infant was placed on the throne under British guardianship. तो इस तरह से पूरी तरह से मराठों का जो स्टोरी है वो एंड हुई आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. Well, Peshwa surrendered in 1818. पेशवा ने सरेंडर किया 1818 में. He was dethroned and pensioned off to a small estate in Bittur near Kanpur.
Most part of his territory became part of Bombay Presidency. His adopted son Nana Sahab became one of the leader of the revolt of 1857 at Kanpur. और कहा जाता है कि बाजीराव सेकंड के जो बेटे थे नाना साहब, उनको बाद में पेंशन देने से मना कर दिया गया, एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम द पार्ट ऑफ 1857 म्यूटनी। तो ये एक स्टोरी रही आंग्ल मराठा वॉर की, जो हमने आपके साथ डिस्कस करी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके रीजंस क्या रहे, मराठा लॉस की बात करें, लैक ऑफ यूनिटी अमंग द मराठा चीफ themselves, lack of good relation with other Indian princes and ruling dynasties, failure to understand the British political and diplomatic strength, obviously। तो एक तो इनकी खुद की यूनिटी इनको इनका एक रीजन बना इनके मराठा लॉस का। गुड रिलेशन विद इंडियन प्रिंसेस एंड रूलिंग डायनेस्टीज, गुड रिलेशन ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए इंडियन प्रिंसेस के साथ और रूलिंग डायनेस्टीज के साथ, एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल जो क्लेवरनेस थी उसको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, एंड दैट बिकेम द रीजन ऑफ मराठा लॉस। सो वेल स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, आप एक बार इनको देखें और इनका आंसर बताएं और देखें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगता है। Balaji Vishwanath was the first Peshwa. He made the post of Peshwa hereditary. First statement. Balaji Vishwanath gained certain rights from then Mughal Emperor Ahmad Shah. Mughal Emperor recognized Shahu as a Maratha king. This is third statement. He allowed Shahu to collect Chauth Sardeshmukhi from 6 Mughal provinces in Deccan. तो वेल आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है। तो अगर आप देखें जो भी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें आई थिंक बालाजी विश्वनाथ वाज द फर्स्ट पेशवा, ही मेड द पोस्ट हेरिडिटरी, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बालाजी विश्वनाथ गेन सर्टेन राइट्स फ्रॉम फर्रुखशियार नॉट अहमद शाह, तो दैट्स व्हाई इनकरेक्ट, बट यस दिस इज करेक्ट वन, मराठा किंग उनको मान लिया गया, एंड I think fourth statement also correct one. So the answer must be 1, 3 and 4, and 1, 3, 4 is in B. So my answer is B for Bombay. 1, 3, 4. I think hope you got it. Okay. Now students come to क्वेश्चन नंबर 2। अब एक बार आप देखें और इसका आंसर बताएं। अभी हमने आपके साथ ट्रीटीज डिस्कस की, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइन, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ बसील, ट्रीटी ऑफ वडगांव हमने डिस्कस की। तो आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको लगाना है। तो वेल आप थोड़ा सा सोचें और आंसर डिसाइड करें, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई थिंक होप आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वेल अगर हम देखें तो ट्रीटी ऑफ सूरत हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में डिस्कस करी 1775 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, दैट वाज द एंड ऑफ एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट, ट्रीटी ऑफ बसील दैट वाज सेकंड एंग्लो मराठा वॉर अराउंड टू 1803, एंड ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 फर्स्ट बैटल। तो ये एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट, एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट, एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट, एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट, बट इट वाज एंग्लो मराठा वॉर सेकंड। तो अब इनको अगर अरेंज करें तो 1 देन 2 देन 5 देन 3 एंड देन आई थिंक 4। So 1 2 5 3 4, where is 1 2 5 3 4? So correct answer is A, 1 2 5 3 4. So I think hope you got it. Okay, now come to next. Well, question number 3. Bajirao II sought British protection and signed the Treaty of Bassein with them. The Scindia and the Bhosle did not accept this treaty, and this caused the Second Anglo-Maratha War in central India in 1803. The Holkar also joined the battle against the English at the later stage. तो अभी हमने ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में। आप देखें और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। Take your time, take your time, 30 seconds, take your time. Well, I think student, now this is the time to tell the correct answer. Well, I think this is correct statement. Bajirao II sought British protection and signed the Treaty of Bassein with them. Correct. Scindia and Bhosle did not accept this treaty. Correct one. Holkar also joined the battle against the English at a later stage. So yes, correct one. So I think the right answer is 1 2 3. Or if I am not wrong, so
the right answer is 1 to 3, or you can check when I will share notes with you. इस notes को आप के साथ share करेंगे PDF फॉर्म में, तो आप एक बार इसको गो थ्रू करना और देखना कि क्या क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो मैंने आपको बताया वो सही है या नहीं। नोट्स में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, विल चेक। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। After the Second Anglo-Maratha War, the Marathas made one last attempt to rebuild their old prestige. Okay, they were also unhappy. With the British residents' interference. Okay, the chief reason for this war was a British conflict with the Pindaris, whom the British suspected were being protested by the Marathas. So, which of the statement given above are correct? Please think. Brainstorming करें आप, 30 सेकंड का टाइम ले and decide your right answer. So, well, hope, I think you got the right answer. Well, after the Second Anglo-Maratha War, the Maratha made one last attempt. Yes, correct one. They were also unhappy with the British resident interference. Correct one. Interference उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी. Chief reason Pindaris का हमने issue आपके साथ discuss किया, बिल्कुल correct है. So I think D for Delhi 1, 2, 3 is the right answer of question number 4. Hope you made it right. Okay, fine. Now come to next. Question number 5. After Third Anglo-Maratha War, the Peshwa surrendered 1718. He was dethroned and as a pension. This is second statement, this is second statement, and this is third statement. He was dethroned and pensioned off to a small estate in Bittur. In 1818, his adopted son Nana Sahib became one of the leader of the revolt of 1857 at Kanpur. So please read it carefully, do brainstorming and give the right answer. Take 30 seconds. I am waiting your right answer. Take your time and try to give the right answer. We already discussed. Well, student, I think this is absolutely incorrect statement, because now this is the time to give the answer. 1718 not, it was 1818. We already discussed 1818 का वो time था Third Anglo-Maratha War के समय. And yes, this is correct one, this is correct one. So I think my answer is C, 2 and 3 must be the right answer of question number 5. So well, student, hope you got it. So out of 5 questions, अगर आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए हैं आउट ऑफ 5, बिकॉज ऑलरेडी हमने बिल्कुल अभी ताजा डिस्कस किया, तो एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चंस जो है राइट देने चाहिए थे. दैट इज काइंड ऑफ 60%. तो अगर आपने ये दिया है तो बिल्कुल उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से वेरी गुड. लेकिन अगर आपने 1 और 2 क्वेश्चंस के भी करेक्ट आंसर दिए तो भी नो नीड टू वरी. जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू गिव 5 out of 5 answers, right answers. So well student, thank you very much and hope हम लोगों ने जो भी आज क्लास में डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. इन नोट्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे पीडीएफ फॉर्म में. आप एक बार इनको गो थ्रू करना एंड लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे इसमें जो हमने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस किए, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं. सो वेल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.